What should be the rate of rising of pressure during hydro test? हाइड्रो टेस्ट के दौरान दाब बढ़ने की दर क्या होनी चाहिए? The rate of rising boiler should be maximum 10 kilograms square centimeter per minute. Maintain pressure for 10 minutes and watch for any abnormal drop of pressure or any leakage. बॉयलर में दाब बढ़ने की दर अधिकतम 10 किग्रा वर्ग सेमी प्रति मिनट होनी चाहिए। 10 मिनट तक दाब बनाए रखें और दाब में किसी भी असामान्य गिरावट या रिसाव पर नजर रखें। Why is multiple control valve arrangement made and how is it achieved? बहु नियंत्रण वाल्व व्यवस्था क्यों की जाती है और ये कैसे प्राप्त की जाती है? Multiple valves make the steam flow control more effective and minimize the throttling loss. It is operated by a governing valve which is actuated mostly hydraulically. The valves are fixed to the lever in such a way that the particular valve open or closed at particular lever position. Depending upon the steam requirement at different load condition, different valves open and the steam flows to different nozzle sets of the turbine. बहु वाल्व भाप प्रवाह नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाते हैं और थ्रोटलिंग हानि को कम करते हैं। ये एक नियंत्रक वाल्व द्वारा संचालित होता है जो मुख्यतः हाइड्रोलिक रूप से संचालित होता है। वाल्व लीवर पर इस प्रकार लगे होते हैं कि विशिष्ट वाल्व लीवर की विशिष्ट स्थिति पर खुलता या बंद होता है। विभिन्न भार स्थितियों में भाप की आवश्यकता के आधार पर विभिन्न वाल्व खुलते हैं और भाप टरबाइन के विभिन्न नोजल सेटों में प्रवाहित होती है। What is COC of cooling water? How is it controlled? शीतलन जल का COC क्या है? इसे कैसे नियंत्रित किया जाता है? When pure water is evaporated, minerals are left behind in the circulation water. As evaporation continues, the water becomes more concentrated than the original makeup water. The ratio of level of solids of circulating cooling water to the level of solids of the fresh raw makeup water is called cycle of concentration COC. It is controlled by adjusting the amount of water drained, blow down, and replenished makeup to balance water conservation with preventing harmful scaling and fouling from mineral buildup. जब शुद्ध जल वाष्पित होता है, तो खनिज पदार्थ परिसंचारी जल में ही रह जाते हैं। जैसे जैसे वाष्पीकरण जारी रहता है, जल मूल मेकअप जल की तुलना में अधिक सांद्रित हो जाता है। परिसंचारी शीतलन जल के ठोस पदार्थों के स्तर और ताजे कच्चे मेकअप जल के ठोस पदार्थों के अनुपात को COC सांद्रता चक्र कहा जाता है। इसे जल संरक्षण और खनिज संचय से होने वाली हानिकारक स्केलिंग और गंदगी को संतुलित करने के लिए निकाले गए, ब्लो डाउन और भरे गए मेकअप जल की मात्रा को समायोजित करके नियंत्रित किया जाता है। डिफाइन रेडियल एंड एक्सियल मिसअलाइनमेंट। रेडियल और अक्षीय मिसअलाइनमेंट को परिभाषित करें। इन रेडियल और पैरेलल और ऑफसेट मिसअलाइनमेंट, the center lines of both shaft run parallel to each other but they are offset. In axial misalignment, axial spacing or coupling gap of both shaft is not uniform or the coupling faces are at an angle to each other. This has no relation to the axial play or axial shift of the shafts. For correction of axial alignment or coupling gap, actually angularity is measured. So it is called angular misalignment also. रेडियल या समानांतर या ऑफसेट मिसअलाइनमेंट में दोनों शाफ्ट की केंद्र रेखाएं एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, लेकिन वे ऑफसेट होती हैं। अक्षीय मिसअलाइनमेंट में दोनों शाफ्ट का अक्षीय अंतराल या युग्मन अंतराल एक समान नहीं होता है या युग्मन फलक एक दूसरे से कोण पर होते हैं। इसका शाफ्ट के अक्षीय प्ले या अक्षीय विस्थापन से कोई संबंध नहीं है। अक्षीय संरेखन या युग्मन अंतराल के सुधार के लिए वास्तव में कोणीयता मापी जाती है, इसलिए इसे कोणीय मिसअलाइनमेंट भी कहा जाता है। What are the methods adopted to remove dissolved gases from the boiler water? बॉयलर के पानी से घुली हुई गैसों को निकालने के लिए कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं? For removal of dissolved gases, deaeration is done in an equipment called deaerator.
Chemical dosing hydrazine is done in the feed water to remove oxygen. This is called as low pressure LP dosing. घुली हुई गैसों को निकालने के लिए डिएरेटर नामक उपकरण में डिएरेशन किया जाता है। ऑक्सीजन को निकालने के लिए फीड वाटर में हाइड्रोजन का रासायनिक डोजिंग किया जाता है। इसे निम्न दाब LP डोजिंग कहते हैं।